السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید، فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بارہا اس بات کا حکم دیا ہے کہ اس کی تسبیح بیان کرو۔ کہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سبح اسم ربک الاعلی، اور کہیں پہ اللہ تعالیٰ تسبیح کرنے کا حکم اس طرح دے رہے ہیں فسبح بحمد ربک حین تقوم ومن اللیل فسبح وادبار النجوم، یعنی اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر اس بات کا حکم دیا ہے کہ اس کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ اور تسبیح کا معنی و مفہوم کیا ہے، تسبیح کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر عیب، ہر نقص اور تشبیہ سے پاک کہنا اور اس کی تعظیم بیان کرنا، اس کی بڑائی بیان کرنا، اس کی شان بیان کرنا، اس کو تسبیح کہا جاتا ہے۔ اور اسی بات کا ذکر اللہ رب العزت نے سورہ مومنین کے اندر فرمایا سبحان اللہ عما یصفون، کہ اللہ تعالیٰ تو ان باتوں سے پاک ہے جو وہ مشرک اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ اور تسبیح کا مفہوم یہ ہے کہ اس بات کا اقرار کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر ذوف سے اور ہر احتیاج سے منزہ اور مبرہ ہے، وہ اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ اور اسی طریقے سے ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اس بات کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ان الفاظ میں بیان کیا تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم، کہ زمین و آسمان اور اس کے اندر پائی جانے والی ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ ولکن لا تفقہون تسبیحہم، لیکن تمہارے اندر اتنا شعور نہیں ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ان چیزوں کی تسبیح کو پرکھ سکو یا ان کو جان سکو۔ گویا اللہ تعالیٰ کی جو تسبیح ہے وہ ہر چیز بیان کرتی ہے، لیکن ہمارے اندر اتنا شعور نہیں ہے، ہمارے اندر اتنی عقل نہیں ہے کہ ہم اس تسبیح کو سمجھ سکیں۔ اب قیامت کے دن دیکھیں کہ انسان کے جو اعضاء ہیں یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ جس سے چاہے بلوا لے۔ تو قیامت کے دن انسان کے جو اعضاء ہیں وہ انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ انسان کا چمڑا بولے گا، انسان کا جسم بولے گا، انسان کی ٹانگیں جو ہیں، انسان کے اعضاء، ہاتھ پاؤں اللہ تعالیٰ سے کلام کریں گے، اور جب وہ اس کے خلاف گواہی دیں گے تو انسان یہ کہے گا کہ تم میرے خلاف ہی گواہی دے رہے ہو، تم میرے خلاف ہی بول رہے ہو۔ تو وہ اعضاء یہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جو ذات ہر چیز کو بلوا سکتی ہے، جو ذات ہر چیز کو بلوا سکتی ہے، اس کو قوت گویائی دے سکتی ہے، تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس نے ہم سے بھی بلوا لیا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی مخلوق ہے چونٹی، وہ بھی آپس میں کلام کرتی ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرمائی ہے۔ جب چونٹیوں نے سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھا تو ان چونٹیوں میں سے ایک چونٹی نے کہا قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، کہ اے چونٹیوں تم اپنے بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں روند ڈالے۔ یعنی ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بول سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر سکتی ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, कि हर चीज़ जो है आसमानों के अंदर, ज़मीन के अंदर, वो चरिंद हैं, परिंद हैं, वो इंसान हैं, वो हैवानात हैं, हत्ता कि पानी के जो जानवर हैं, मछलियाँ, वो भी अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करती हैं। और फिर इस बात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पैराए में बयान किया। अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमुरुकुमा बिसुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही फ़इन्नहा सलातु कुल्लि शै व बिहा युरज़क़ु कुल्लु शै। फरमाया कि मेरे सहाबा, मैं तुम्हें इस बात का हुक्म देता हूँ कि तुम सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही ये पढ़ते रहा करो, इसका ज़िक्र करते रहा करो, इसलिए कि फ़इन्नहा सलातु कुल्लि शै, ये सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही ये हर चीज़ की नमाज है। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही ये हर चीज़ की नमाज है। व बिहा युरज़क़ु कुल्लु शै, और फरमाया कि हर चीज़ को जो रिज़्क़ दिया जाता है वो इसी सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही की वजह से ही दिया जाता है। यानी आप अंदाज़ा करें कि हर चीज़ जो है उसकी नमाज, वो हैवानात हैं, वो चरिंद हैं, परिंद हैं, अशजार हैं, पहाड़ हैं, हत्ता कि आसमानों की जो मखलूक है, सूरज, चाँद, सितारे, ये सारी की सारी चीज़ें अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करती हैं। और उनकी तस्बीह जो है वो क्या है? सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, ये पढ़ना उनकी नमाज है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हर चीज़ जो है वो इस तरह नमाज पढ़ती है, इन अल्फाज के साथ नमाज पढ़ती है, और इसी वजह से सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही की वजह से हर चीज़ को रिज़्क़ मुहैया किया जाता है। और फिर देखें, यहाँ तक कि जो पानी के जो जानवर हैं, मेंढक के बारे में अहादीस के अंदर आता है, मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा की हदीस है। अब्दुल्ला बिन अमर बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तक़्तुलुद दफ़ादिआ, फरमाया कि ये जो मेंढक हैं इनको कत्ल न करो, इनको मारो ना। फ़इन्न नक़ीक़हल्लज़ी तस्मऊन तस्बीहुन, फरमाया कि इनकी जो ये आवाज़ है, ये जो गड़ें गड़ें करते हैं, इनकी ये जो आवाज़ है, फरमाया ये अल्लाह ताला की तस्बीह है। यानी आप अंदाज़ा करें कि पानी के जो जानवर हैं उनकी आवाज़ों को तो आप सुन भी सकते हैं, जैसा कि ये मेंढक जो है वो एक पानी का जानवर है और ये अल्लाह ताला की बकसरत तस्बीह बयान करता है। और फिर ये देखें कि तस्बीह की कितनी अहमियत है कि यूनुस अलैहिस्सलाम जब अपनी बस्ती को छोड़कर भाग निकले और वो कश्ती में सवार हुए, तो कश्ती वालों ने उनको समुंदर में फेंक दिया और वो एक मछली का लुक़मा बन गए। और वहाँ भी देखें कि यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की तस्बीह बयान की, और इस बात का ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया कि अगर मेरा बंदा यूनुस मेरी तस्बीह बयान न करता तो वो क़यामत तक मछली के पेट के अंदर ही रहता। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। यानी कि यूनुस अलैहिस्सलाम जो थे, उन्होंने मछली के पेट के अंदर अल्लाह ताला की तस्बीह बयान की, और इस तस्बीह की वजह से अल्लाह ताला ने उनको उस करब से निजात अता फरमाई। यानी आप अंदाज़ा करें कि यूनुस अलैहिस्सलाम की जो खुलासी हुई है, यूनुस अलैहिस्सलाम को जो निजात मिली है, वो भी इस तस्बीह की वजह से मिली है। और फिर इसी तरीके से देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की तस्बीह बकसरत बयान किया करते थे। हत्ता कि आप देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज़ पढ़ते थे, रुकू और सजदा करते थे, तो रुकू और सजदे के अंदर बकसरत ऐसी दुआएं मौजूद हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू के अंदर और सजदे के अंदर अल्लाह ताला की तस्बीह बयान किया करते थे। सुबहान रब्बी अल अज़ीम, सुबहान ज़िल जबरूति वल मलकूति वल किब्रियाइ वल अज़मा, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर रूह। ये रुकू की दुआएं हैं, और इनमें देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआएं रुकू के अंदर तस्बीहात की सूरत में पढ़ा करते थे। और फिर इसी तरीके से देखें कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कसरत के साथ सजदे के अंदर भी यही दुआएं पढ़ते थे। सुबहान रब्बी अल आला,
सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह सुबहान ज़िल जबरूति वल मलकूति वल किब्रियाइ वल अज़मा सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली। ये कसरत के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू और सजदे के अंदर तस्बीहात पढ़ा करते थे। सैयद आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो बयान करती हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक्सिरु अन यक़ूल फ़ी रुकूइही व सुजूदिही सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली। फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकसरत रुकू और सजदे के अंदर ये दुआ तस्बीह की सूरत में पढ़ा करते थे, सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीक़ा था, आपका ये अंदाज़ था कि आपका रुकू और सजदा उसके अंदर बहुत ज़्यादा आप अल्लाह ताला की तस्बीह बयान किया करते थे। और फिर ये तस्बीह जो है अल्लाह ताला की पाकी और अज़मत बयान करना, ये इसकी इतनी अहमियत और फ़जीलत है कि ये अल्लाह ताला के अर्श का तवाफ़ करते हैं। ये जो कलिमात हैं, अल्लाह ताला की तस्बीह, अल्लाह ताला की किब्रियाई बयान करना, अल्लाह ताला की अज़मत बयान करना, ये अल्फाज जो हैं अल्लाह ताला के अर्श का तवाफ़ करते हैं, उसका चक्कर लगाते हैं। और सुनन इब्न माजा के अंदर नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो बयान करते हैं, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न मिम्मा तज़कुरून मिन जलालिल्लाहि तस्बीहा व तहलीला व तहमीदा। फरमाया कि ये जो तुम अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते हो, अल्लाह ताला की वहदानियत बयान करते हो और अल्लाह ताला की हमद बयान करते हो, ये सारे के सारे जो कलिमात हैं यनअतिफ़ना हौलल अर्शी। फरमाया कि ये अल्लाह ताला के अर्श का तवाफ़ करते हैं, उसका चक्कर लगाते हैं। लहुन्ना दवियुन का दविय्यिन नहली। फरमाया कि इनके लिए एक आवाज़ होती है, इनके लिए एक भिनभिनाहट होती है, जैसे शहद की मक्खी भिनभिना रही होती है, उसकी एक ख़ास आवाज़ होती है। जब ये अल्लाह ताला के अर्श का ये कलिमात तवाफ़ करते हैं तो इनकी एक आवाज़ होती है, तो ज़क्किरू बिसाहिबिहा। और ये बड़ी एक अहम बात है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये जो कलिमात हैं ये जाके अपने पढ़ने वाले का अल्लाह ताला के यहाँ ज़िक्र करते हैं। जो शख्स ये कलिमात पढ़ता है, ये कलिमात अल्लाह के सामने जाके अल्लाह की बारगाह में ये अपने पढ़ने वाले का, ज़िक्र करने वाले का नाम लेके उसकी तारीफ़ करते हैं। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अमा युहिब्बु अहदुकुम अन यकून लहू मन युज़क्किरु बिही। फरमाया मेरे सहाबा, क्या तुम ये पसंद करते हो, मेरे सहाबा क्या तुम ये पसंद करते हो कि तुम्हारा ज़िक्र जो है वो अल्लाह ताला के दरबार में हो, तुम्हारा कोई ज़िक्र अल्लाह ताला के सामने तुम्हारा ज़िक्र करे, अच्छे कलिमात से तुम्हें याद किया जाए, क्या तुम ये पसंद नहीं करते? यानी एक मोमिन के लिए ये बड़े शर्फ़ की बात है कि उसका ज़िक्र अल्लाह ताला के दरबार में हो रहा है। इस बुलंद मुकाम के हुसूल के लिए, इस दर्जे को हासिल करने के लिए हमें हर वक्त अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करनी चाहिए। और फिर देखें कि ये तस्बीह जो है इसकी इतनी फ़जीलत है, तस्बीह अल्लाह ताला को इतनी पसंद है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कलिमतान खफ़ीफ़तान अलल लिसान सक़ीलतान फ़िल मीज़ान हबीबतान इलर रहमान। फरमाया कि दो कलमे ऐसे हैं कि जो ज़ुबान पर बहुत ज़्यादा हल्के हैं लेकिन मीज़ान में उनका बहुत ज़्यादा वज़न है। हबीबतान इलर रहमान, और अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंदीदा हैं। वो दो कलमे कौन से हैं? सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। फरमाया कि ये जो दो कलमे हैं ये अल्लाह ताला के यहाँ बड़े बहुत ज़्यादा महबूब हैं। और फिर आप अंदाज़ा करें कि ये जो तस्बीह है इसकी इतनी अहमियत और फ़जीलत है कि एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आके कहने लगा, इन्नी ला अस्ततीउ अन अतअल्लमल कुरआन फ़अल्लिमनी मा युजज़ीनी अन्हु। फरमाया अल्लाह के नबी, मेरे अंदर इतनी इस्तिताअत नहीं है, मेरे अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि मैं कुरान को याद कर सकूं, तो आप मेरे लिए कोई ऐसी चीज़ बताएं कि जो मुझे कुरान से किफ़ायत हो जाए, यानी कुरान की जगह पे मैं वो कलिमात पढ़ लूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
कुल सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह, फरमाया तो अल्लाह ताला की तस्बीह बयान कर दिया कर, अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान कर दिया कर, अल्लाह ताला की वहदानियत बयान कर दिया कर, तो ये चीज़ तुझे कुरान से किफ़ायत कर जाएगी। यानी सूरह फातिहा याद नहीं है या कुरान का कोई और हिस्सा याद नहीं है, तो कुरान की जगह पे अगर ये कलिमात पढ़ लिए जाएं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तुम्हारे लिए काफ़ी हैं। और फिर इसी तरीके से ये जो तस्बीहात हैं इनकी कुरान व हदीस के अंदर इनकी बहुत ज़्यादा फ़जीलत आई है। काब बिन उजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुअक्किबातुन ला यखीबु क़ाइलुहुन्ना, फरमाया कि नमाज के बाद कुछ कलिमात ऐसे हैं कि अगर उन कलिमात को कोई नमाज के बाद पढ़ता है तो फरमाया कि वो कभी भी नाकाम नहीं होगा, वो कभी भी घाटे में नहीं रहेगा। वो कलिमात कौन से हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 33 दफ़ा सुबहान अल्लाह पढ़ लिया जाए और 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया जाए और 33 दफ़ा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया जाए। ये कलिमात जो बंदा नमाज के बाद पढ़ता है वो कभी भी घाटे में नहीं रह सकता। तो मोहतरम नाज़रीन किराम, आपने कुरान और हदीस से ये बात सुनी और समझी कि ये जो कलिमात हैं अल्लाह ताला की जो तस्बीह बयान करना है, अल्लाह ताला के यहाँ इसकी बड़ी अहमियत और फ़जीलत है। इसलिए ये जो कलिमात हैं अल्लाह ताला की तस्बीह के, अल्लाह ताला की किबरियाई और बड़ाई के, इन्हें हमें अपना ओढ़ना और बिछोना बना लेना चाहिए। उठते बैठते लेटते सोते हर वक्त ये कलिमात जो हैं हमें पढ़ने चाहिए, इनका विर्द करना चाहिए। अल्लाह ताला जो हमने सुना है उस पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।